All right, let us begin now. We were discussing about certain characteristic feature of chemical substances. Chemical substances can be passed through two types of changes, right? दो टाइप के चेंजेस हो सकते हैं केमिकल सब्सटेंसेस के साथ. वन, it can be physical change, and second, it is a chemical change. These are the phenomena we already have discussed. I am revising it for you. आपके लिए मैं रिवाइज कर रहा हूं. ओके, फिजिकल चेंजेस के अंदर नो केमिकल बॉन्ड, neither chemical bond will be broken down nor chemical bond will be formed. This is how chemical changes are important with. So they are either forming or breaking down the chemical bonds. या तो वो केमिकल बॉन्ड को बनाते हैं या तो केमिकल बॉन्ड वहां पे टूटता है. सो देर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ एनी ऑफ द केमिकल substances getting chemically changed, either by forming bond or by breakdown of the same bond. Understood? All right. I am not currently focusing on physical activity because our concern is importance of an enzyme. Right now we are focusing towards the enzymatic activities. हम एंजाइम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, right? And enzymes are controlling metabolism. Metabolism is chemical changes whatsoever happening inside either cell or body of an individual. तो हम फोकस करेंगे केमिकल चेंज के ऊपर. We are supposed to compare the importance of enzymatic activity versus importance of non-enzymatic activities. हमें एंजाइम का ही तो इंपॉर्टेंस समझना है by discussing these events, right? So now chemical reactions, I can divide them into two subcategories. एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो ऑर्गेनिज्म या सेल के अंदर होगी, और एक ऐसी केमिकल चेंजेस है जो एनवायरमेंट में होगी. जो केमिकल रिएक्शन ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, आई टेल देम ऑर्गेनिक रिएक्शंस, एंड जो एनवायरमेंट में होगा दैट इज इनऑर्गेनिक रिएक्शन. So that was the last point of view we have discussed. जो बॉडी के अंदर होगा, जो सेल के अंदर होता है, those chemical activities are to be confined as organic reactions. So our intention now is to focus towards organic reactions which are controlled by enzymes. Enzyme उसको control कर रहे हैं organic activities को, because our body, our cells are doing organic kind of reactions. Fine? Okay. Now
enzymes versus chemical reaction मीन्स ये किस हिसाब से इसके ऊपर असर करेंगे, व्हाट वे एंजाइम्स आर अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शन। सिंपलेस्ट मोस्ट लॉजिक आपको जो याद रखना है वो ये है कि केमिकल रिएक्शन को वो बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, उसकी स्पीड को, उसके रेट को वो इंक्रीज करते हैं, राइट। They are increasing the speed, the velocity, the rate of reaction. तो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन का जो मैटर है दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन को मैं डिफाइन कैसे करूंगा, दैट हैज बीन डिफाइंड इनटू योर बुक द सेम वे। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी is the shortest formula we can use to define the rate of reaction, right? So rate of physical or chemical processes is to be defined as the amount of product generated within given time frame, unit time. 1 second में कितनी प्रोडक्ट बनती है, 1 मिनट के अंदर से फॉर एग्जांपल कितनी प्रोडक्ट बनती है, राइट, 1 आवर के अंदर से फॉर एग्जांपल कितनी प्रोडक्ट बनती है। तो विद इन अ गिवन यूनिट टाइम के अंदर आप कितनी प्रोडक्ट बना सकते हो, दैट इज कन्फाइंड एज द रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। सो अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम, दैट इज डेल्टा पी, पी दैट इज प्रोडक्ट, राइट, and delta t, that is t means reference to the time. So within time how much product you can generate, it is called the rate of reaction. अब say for example मैं ऐसा बोल रहा हूं कि rate of reaction कम है तो मैं कम प्रोडक्ट बना सकता हूं, rate of reaction ज्यादा है तो मैं ज्यादा प्रोडक्ट बना सकता हूं। तो अगर मैं उस रेट को बढ़ाता हूं तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ता है दैट शोज के रेट बढ़ता है। तो एक यूनिट टाइम में से फॉर एग्जांपल 1 मिनट के अंदर अगर पहले 100 मॉलिक्यूल बनते थे, अभी वही 1 मिनट के अंदर मैं अगर 1000 मॉलिक्यूल बनाता हूं, राइट, तो रेट बढ़ गया है बट टाइम फ्रेम वही है। तो मैं ये भी बोल सकता हूं ना कि मैंने अपनी प्रोडक्शन की स्पीड को बढ़ाया, वेलोसिटी को बढ़ा दिया है। सो समटाइम्स द रेट इज ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड एज द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। इट इज द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन और स्पीड ऑफ द रिएक्शन। सो वो कब करेंगे हम कि ये स्पीड है या वेलोसिटी है। सो रेट इज समटाइम्स वेलोसिटी, बट वो वेलोसिटी हम कब बोल सकते हैं, जब एक स्पेसिफिक कंडीशन है। सो डायरेक्शन इज व्हेन स्पेसिफाइड, व्हेन द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड कि ये सबस्ट्रेट है, उसमें से यही प्रोडक्ट बनने वाला है। अगर ऐसी स्पेसिफिक लाइन है, अगर स्पेसिफिक चेन ऑफ रिएक्शंस है, तब मैं ये बोल सकता हूं कि वेलोसिटी या रेट दोनों एक ही है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, राइट। सो वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन और rate of reaction is same when direction is specified. Okay, let me give an example of it. कोई एक ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, दैट इज से फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन। So according to the phenomena of respiration, glucose, that is C6H12O6, is going to be broken down to produce ATP. That is very known phenomena. So when glucose is getting broken down, it will produce carbon dioxide,
water and ATP. So our intention is to produce ATP, which is getting stored into molecule of glucose, chemical bond whatsoever is found between carbon, hydrogen and oxygen. Energy is getting stored within those bonds. When those bonds are getting broken, that chemical energy is released and it is converted into the form of ATP. वो ATP में convert हो रही है energy. So एक टाइप के केमिकल में से दूसरे टाइप के केमिकल में वो एनर्जी कन्वर्ट हुई है. बट आवर इंटेंशन इज व्हाट, जी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इट इज गेटिंग ब्रोकन डाउन, फिक्स है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ही कन्वर्ट हो रहा है. अब ये बैक्टीरिया के अंदर होगा प्रोसेस तो भी यही होगा, अगर प्लांट के अंदर ये प्रोसेस होना है तो भी यही होने वाला है. एंड आपके बॉडी के कोई भी सेल के अंदर ये प्रोडक्ट हो रहा है तो भी यही प्रोडक्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही. मींस डायरेक्शन इज फिक्स्ड. तो व्हेन सो एवर आई एम कंडक्टिंग एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन फिक्स ही होती है. डन? यस यस यस. सॉरी ओके. कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है, पाथवे कोई भी है, रेस्पिरेटरी पाथवे, डाइजेस्टिव पाथवे है, सर्कुलेटरी पाथवे है, रिप्रोडक्टिव पाथवे, पाथवे कोई भी है, एक्सक्रीशन का पाथवे, कोई भी पाथवे है, लेकिन उसका प्रोडक्ट भी फिक्स है एंड उसका सबस्ट्रेट भी फिक्स है, उसके इंटरमीडिएटरी जो रिएक्टेंट होंगे वो भी फिक्स है. सो सभी फिक्स है. आई मीन एवरीथिंग इज गेटिंग फिक्स्ड. कहीं पे भी कोई भी इधर उधर कोई नहीं हो रहा है. एक एग्जाम्पल यहां पे दिया गया है, मैं आपको दिखा रहा हूं. राइट, या दिस इज द एग्जाम्पल. देखिए यहां पे जो दिखाया गया है ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H12O6, जो दो मॉलिक्यूल के अंदर डिवाइड हो रहा है, दैट इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड. तो पूरा रिएक्शन की चेन यहां पे दी गई है, यहां से स्टार्ट करके ग्लूकोज, ये एंड होता है पाइरुविक एसिड. सो ये पूरा चेन ऑफ रिएक्शन है. आपको शायद दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत स्मॉल लेटर्स में है, बट दैट इंक्लूड दैट स्टेप्स विच यू कैन सी हियर इंक्लूड्स 10 डिफरेंट स्टेप्स. उसके 10 स्टेप की वो रिएक्शन है पूरी. आपके टेक्स्ट बुक में आएगा आगे, चैप्टर नंबर 11 12th में, 12th चैप्टर में आएगा ये पूरा, है ना. इट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइटिक पाथवे. ये नाम आपको पता होगा क्योंकि 10th में ग्लाइकोलाइसिस नाम का एक पॉइंट आया है. तो आप जो ग्लाइकोलाइसिस नाम के जो पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे 10th स्टैंडर्ड में, ये वही ग्लाइकोलाइसिस है पूरा. ग्लाइकोलाइसिस के पाथ में 10 स्टेप्स है, वो फिक्स ही होता है. वो आपके अंदर हो रहा है तो भी यही होगा, प्लांट के अंदर हो रहा है तो भी यही होगा, फंगस के अंदर हो रहा है तो भी यही होगा. ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे फिक्स होता है, सभी के अंदर यही पाथवे होता है. सो यहां पे फिक्स है, जहां पे ऑर्गेनिक रिएक्शंस होंगे वहां पे पाथवे फिक्स्ड है. अगर पाथवे फिक्स्ड है तो एज आई सेड अर्लियर इट इज वेलोसिटी. वेलोसिटी मानी स्पीड की बारे में बात कर रहे हैं यहां पे. तो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि जब ये केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर या तो सेल के अंदर होती है तो एंजाइम का रोल यही होता है कि एंजाइम उसकी स्पीड को बढ़ाता है, दैट इज वेलोसिटी को बढ़ाता है, क्योंकि ये डायरेक्शन फिक्स है. हमारी बॉडी के अंदर होने वाली कोई भी रिएक्शन है, वी हैव फिक्स्ड डायरेक्शन फॉर दैट. So rate of physical and chemical processes are influenced by the factors such as temperature, right? Rate जो होता है velocity के बारे में उसके पहले हमने जो पढ़ा था डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, that is rate of reaction. तो वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसके ऊपर काफी सारे एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जिसकी इफेक्ट होती है. राइट, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा उसके ऊपर काफी सारे फैक्टर्स की इफेक्ट होती है. आइदर वो
केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है या तो वो फैक्टर केमिकल रिएक्शन की रेट को डिक्रीज करेगा। अगर फेवरेबल बनता है तो रेट को इंक्रीज करता है, अगर अनफेवरेबल बनता है तो रेट को डिक्रीज करता है। फैक्टर इज सेम बट कंडीशन इज डिफरेंट। फेवरेबल बनता है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, अनफेवरेबल बनेगा तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। अंडरस्टूड? सो लेट वी डिसाइड विथ वन एग्जाम्पल। यहां पे आपकी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल शेयर किया है वो एग्जाम्पल है टेम्परेचर का, राइट? कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज करते हो या 10 डिग्री डिक्रीज करते हो, आई रिपीट, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हो रही है एक नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हो या 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज करते हो, तो इसकी इफेक्ट क्या आएगी वो लिखा है आपकी बुक के अंदर कि अगर आप इंक्रीज करते हो 10 डिग्री सेल्सियस, रेट हो जाएगा डबल, राइट? रेट हो जाएगा डबल। सो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। और अगर आप डिक्रीज करते हो नॉर्मल टेम्परेचर से तो डिक्रीज बाय हाफ। 10 डिग्री सेल्सियस अगर आप कम करते हो नॉर्मल टेम्परेचर से तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाता है। अगर आप वही 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हो, से फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस आप ले लो, 25 रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, काउंट इट दैट वे ऑलवेज। रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर आप 25 से 10 डिग्री कम कर रहे हो, मींस 15 डिग्री तक ले जाते हो टेम्परेचर, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन आधा हो जाएगा, राइट? एंड अगर आप 25 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को अप ले जा रहे हो, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगी। यह फिनोमिना मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, पॉइंट टू बी नोटेड, यह फिनोमिना मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, 25 से 12 डिग्री सेल्सियस ज्यादा। Am I correct? 37 degree Celsius is your body temperature. Am I correct or not? Thumbs up correct, thumbs down incorrect. अब मेरे को thumbs down थोड़े करोगे आप है ना? Right? So our body temperature remains 37 degree Celsius because your reaction must be doubled. यही तो इंपॉर्टेंस, इसलिए तो टेम्परेचर का एग्जाम्पल यहां पे दिया है। आपको टेम्परेचर क्यों यहां पे दिया गया है? बिकॉज यू नो योर बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, यू नो रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए तो आपके बॉडी के अंदर टेम्परेचर को बढ़ा के रखा है 10 डिग्री और मोर देन 10 डिग्री, ताकि आपकी बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शंस जो है वो डबल स्पीड से हो रही है। रेडी? थम्स अप नाउ, थम्स अप। All right, there are many centers which are sleeping mode पे चले गए। There are many centers which are getting into the sleeping mode. Okay. Now, rate of enzyme catalyzed reactions. ऐसे रिएक्शन के जिसमें एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट है। लुक, यहां पे लिखा है रेट ऑफ एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन। एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन का मतलब है ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एंजाइम इन्वॉल्व है। तो एंजाइम कहां पे इन्वॉल्व है? आपकी बॉडी या आपकी सेल की जो भी केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर एंजाइम इन्वॉल्व है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी हाई, रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी हाई। बस वही तो इंपॉर्टेंस है, वही तो हमें जानना है कि केमिकल रिएक्शन में एंजाइम का क्या रोल है केमिकल रिएक्शन में। तो इट इज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, उसकी स्पीड को बढ़ाता है, राइट? उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहां पे शेयर किया है। कार्बन डाइऑक्साइड
यहां पे है CO2, पानी वाटर मॉलिक्यूल H2O, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो सकता है अंडर हाई प्रेशर और अंडर सर्टन abnormal temperature, right? Abnormal temperature means not high temperature, low temperature and high pressure. जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, एसिडिक मटेरियल बनता है, एसिडिक मटेरियल, जिसको मैं बोलूंगा कार्बोनिक एसिड, H2CO3, कार्बोनिक एसिड इट इज। तो वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे और कार्बनिक एसिड बनाएंगे, कार्बनिक नहीं, कार्बोनिक एसिड। ओके, अब ये होता कहां पे है? मैंने क्या बोला था, एक तो हाई प्रेशर और दूसरा लो टेम्परेचर। ये दोनों स्पेसिफिक कंडीशन हम कहां पे देते हैं बताएं? पैकेज्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स में, थम्स अप, राइट, थम्स अप, ये थम्स अप नहीं, पीने की थम्स अप, राइट, इसीलिए मैंने थम्स अप का एग्जाम्पल दिया। पीने की थम्स अप में एसिड होता है, ऐसा सुना है ना? ये यही एसिड है, क्योंकि उसमें जो बबल्स निकलते हैं व्हेन यू ओपन इट, वो बबल्स कार्बन डाइऑक्साइड के हैं और उसके अंदर जो लिक्विड है वो वाटर है। सो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन इट इज poured into the bottle with high pressure and low temperature, तो वही तो यहां पे लिखा है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, इसीलिए थम्स अप के अंदर एसिड होता है। इसलिए कोई भी पैकेज्ड सॉफ्ट ड्रिंक जो होती है, एरेटेड ड्रिंक, सोडा के अंदर ये कार्बनिक एसिड होता ही है, राइट। सो फाउंटेन सोडा होता है ना, फाउंटेन सोडा पता है ना, वो मशीन वाली सोडा, कि आप जब बनाते हो तो ग्लास नीचे रख के ऐसे बना के देते हैं, फ्रेशली मेड सोडा, राइट। तो उसमें ये नहीं होगा, क्योंकि अभी उसने कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को मिक्स किया है, मिक्स करने के बाद आपको ग्लास में भर के दिया और आपने पी लिया, उसमें वो एसिड नहीं बनता है। फ्रेशली मेड जो सोडा होते हैं उसमें वो नहीं बनता है, बट पैकेज्ड होता है जो बोतल के अंदर होता है उसके अंदर एसिड बनता है ड्यू टू दिस रिएक्शन। रेडी? ये फर्स्ट पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर, हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मल जितने भी सेल्स है, बराबर से कोई भी सेल है, ऑल द सेल्स ऑफ योर बॉडी, उसके अंदर रेस्पिरेशन होता ही है, राइट। उसके अंदर रेस्पिरेशन होगा ही। अगर रेस्पिरेशन होता है तो बॉडी के सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज C6H12O6 इसका ब्रेकडाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता ही है। ये तो आपकी बॉडी के सेल खुद बनाते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर वो लंबे समय तक कोश जो आपकी सेल है, सेल के अंदर या तो बॉडी के फ्लूइड के अंदर रहेंगे तो ये कार्बोनिक एसिड बना सकते हैं, बना ही सकते हैं, राइट, बनता ही है। यस, हाँ बोलिए। से इट अगेन, आप फिर से बोलिए। होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते ही है। फाउंटेन सोडा में नहीं, फाउंटेन सोडा मींस मशीन वाली सोडा नहीं होती, आप जाते हो तो बना देते हैं। फाउंटेन वो मशीन होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, ओके, से इट अगेन, कोई बात नहीं। सोडा में बोतल होती है, बोतल के अंदर पानी होता है, पानी के अंदर आपने डाला है कार्बन डाइऑक्साइड विथ हाई प्रेशर, अंडरस्टूड। कार्बन डाइऑक्साइड को डाला है हाई प्रेशर में,
तो जब हाई प्रेशर के अंदर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होंगे तो वो कार्बनिक एसिड बनाएंगे, सिंपल। टाइम टाइम तो होना चाहिए ना, उसने फ्रेशली बना के आपको दिया, आपने पी लिया, उसको आपने स्टोर नहीं किया है, उसको टाइम देना पड़ता है, वहां पे एंजाइम नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वही पे हम आ रहे हैं अभी, है ना, हम वहीं पे आ रहे हैं एक्चुअली। उसको टाइम देना, उसको से फॉर एग्जांपल मेरी फैक्ट्री है, मैंने सोडा की बोतल्स को बनाया है, फैक्ट्री में अभी प्रोड्यूस किया, तो अभी के अभी मैं आपको दे नहीं दूंगा पीने के लिए, उसको पैक करूंगा, वो पैकिंग होके जाएगा स्टोरेज में, स्टोरेज में से जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास से जाएगा छोटे शॉप के अंदर पान वाले के पास, पान वाले के पास से मैं लेने जाऊंगा, मैं मेरी फ्रीज के अंदर रखूंगा, 5 दिन के बाद वो खुलेगा, तो टोटल टाइम विल बी टेकन मे बी 15 दिन 20 दिन के बाद वो खुलेगा बनने के बाद। तो जितना ज्यादा टाइम वो लेगा उतना ज्यादा एसिड वहां पे बनेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट नाउ परफेक्टली? राइट, सो वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। इमीडिएटली वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का रिएक्शन होकर कार्बोनिक एसिड नहीं बनेगा, इसीलिए फ्रेशली मेड सोडा के अंदर नहीं होता है। जो स्टोर्ड सोडा होगी, लंबे समय तक जो स्टोर होगी, उसके अंदर ज्यादा कार्बोनिक एसिड बनेगा। फाइन, ओके। अब हमारे बॉडी के अंदर आते हैं। हमारी बॉडी के अंदर हमारी खुद की मशीनरी है जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बनाती है। यस, थोड़ा जोर से बोलो ना आवाज में। हाँ, ओ इससे ज्यादा तो मेरी वो वोकल कॉर्ड बाहर निकल जाएगी अभी, है ना, वो हाथ में आ जाएगी, बाद में तो बोल ही नहीं सकूंगा मैं। ओके, ये थोड़ा ऊपर ले लेता हूं अगर होता है तो, इससे ज़्यादा तो आई थिंक सो कोई हेल्प नहीं हो पाएगी। ओके फाइन, आई ट्राई टू, है ना। ओके ओके, हमारी बॉडी के अंदर हमारे हर एक सेल के पास ऐसी मशीनरी है, आई मीन कि वो खुद ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बनाता है, लेकिन वहां पे भी कार्बोनिक एसिड बनने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है ऑटोमेटिकली, अगर हम इंटरफियर नहीं करेंगे तो। अगर वो एसिड बनाना तो हमारी ब्लड की, हमारी इंटरनल जो भी टिश्यूज है उसके अंदर एसिडिटी की वाट लग जाएगी, आई मीन पीएच विल बी डिस्टर्ब्ड। अगर पीएच डिस्टर्ब हुआ मतलब बात खत्म। तो हमें क्या करना है, हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है। सो वी हैव गॉट वन एंजाइम वर्किंग हियर। एक एंजाइम हमने बनाया जो यहां पे काम करेगा, और उसका जो एंजाइम का नाम है, जो एग्जाम्पल यहां पे है, दैट एंजाइम इज कार्बनिक एनहाइड्रेज। आपकी बुक के अंदर है, कार्बनिक एनहाइड्रेज इज अ नेम ऑफ एन एंजाइम जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी को इमीडिएटली रिएक्शन कराएगा, इमीडिएटली उसको कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, और यहां पे ये प्रोसेस स्टॉप नहीं होता है बॉडी के अंदर। ये कार्बनिक एनहाइड्रेज उसको फर्दर ब्रेक डाउन करता है। मेरे को ये चेंज करना है, ओके। ये उसको फर्दर ड्रॉप डाउन, ब्रेक डाउन करता है H प्लस एंड HCO3 माइनस में, राइट। ये फर्दर उसको ब्रेक डाउन कर देगा। पहले इमीडिएटली क्या करेगा, वो कार्बोनिक एसिड बना देगा और उसके बाद उसको ब्रेक डाउन कर देगा प्रोटॉन्स एंड कार्बोनेट्स में, ताकि एसिड की इफेक्ट कोई भी हमारे टिश्यू फ्लूइड के अंदर नहीं होगी। लेकिन हमें जिसके ऊपर ध्यान देना है वो ये है कि ये कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की जो स्पीड है वो कितनी है, वहां पे हमको फोकस करना है, राइट। सो इफ देर इज नो कार्बनिक एनहाइड्रेज, अगर कार्बनिक एनहाइड्रेज है ही नहीं और ये रिएक्शन होना है, तो इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम ओनली 200 मॉलिक्यूल बनते हैं H2CO3 के 1 घंटे में, 1 आवर में, 1 आवर ओनली 200 मॉलिक्यूल। एंड इफ यू हैव कार्बनिक एनहाइड्रेज, यहां पे आपका कार्बनिक एनहाइड्रेज है, तब वो
एक कार्बनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में आप देखिए तो सही 6 लाख ऑफ मोलेक्यूल, 6 लाख मोलेक्यूल, और वो भी एक सेकंड में 6 लाख मोलेक्यूल, और वहां पे 1 आवर में ओनली 200। तो ये छोटू से एंजाइम की ताकत तो देखिए कितनी है। सो दैट्स व्हाट द पावर विच इज गेटिंग, it is established by the enzymatic activities. So ये है एंजाइम आपके लिए, राइट। सो एक एग्जांपल यहां पे जो दिया गया है कि हाउ इट इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द एंजाइम, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ग्रेटली इंक्रीज्ड बाय द एंजाइम्स। रेडी? नो डाउट्स? थम्स अप? ऑल राइट, गुड। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक एग्जाम्पल है मेटाबॉलिक पाथवे का। रेडी? ये है मेटाबॉलिक पाथवे। पाथवे के बारे में हमने आगे भी बात की थी कि कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में अगर एक कोई कंटेस्टेंट है जो पार्टिसिपेट कर रहा है, सबस्ट्रेट बोलेंगे हम उसको, क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट। अगर कोई सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट कर रहा है मेटाबॉलिज्म के अंदर और वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, पॉइंट टू बी नोटेड, there is one substrate, it is going to be converted into a product, तो वो स्ट्रेट वे ये पॉसिबल नहीं होगा, उसके बीच में काफी सारे इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, राइट। सो यहां पे ये जो एग्जाम्पल दिया गया है, अर्लियर मैंने आपको बोला था, ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? ग्लाइकोलाइसिस की। उसकी शुरुआत होती है यहां पे ग्लूकोज से। ये है ग्लूकोज। Glucose is substrate. सबस्ट्रेट मानी जहां से जो केमिकल सब्सटेंस उस प्रोसेस को स्टार्ट करता है उसको मैं सबस्ट्रेट बोलूंगा। डू रिमेंबर दिस, सबस्ट्रेट है ग्लूकोज। और जहां पे केमिकल प्रोसेस एंड होके ये बनेगा उसको मैं बोलूंगा प्रोडक्ट। ये हमारी प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट यहां पे पायरुविक एसिड है। क्या है? पायरुविक एसिड है ये। तो ग्लूकोज में से पायरुविक एसिड बनता है, बट आपने अगर यहां पे देखा, इट इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज में से बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे से बनता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में से बनेगा फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। वो ब्रेक डाउन होकर 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, एक होगा PGAL फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, दूसरा होगा DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कैन नॉट गो फर्दर इनटू द रिएक्शन, तो वो बनेगा फिर से, इसको इसमें डालेंगे तो 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे PGAL के, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड के। दोनों मॉलिक्यूल आगे बढ़ेंगे, राइट, और 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनेंगे लेटर ऑन। सो दिस इज अ सीक्वेंशियल। तो सीक्वेंशियल जहां पे रिएक्शन होगा तो उसको हम बोलेंगे पाथवे। ये पाथ है पूरा, जो फिक्स्ड पाथ है, इसमें से यही बनेगा, इसमें से यही बनेगा, इसमें से यही बनेगा, फिक्स्ड पाथवे है। सो इसलिए हमने नाम उसको बोला है मेटाबॉलिक पाथवे। नाउ ईच स्टेप इज कैटेलाइज्ड बाय डिफरेंट एंजाइम। यहां पे हमें फोकस करना है। हर एक स्टेप का एक अलग एंजाइम है, ये अलग एंजाइम है, ये स्टेप का 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 यहां पे अलग एंजाइम है, ये स्टेप का यहां पे अलग, हर एक स्टेप का एंजाइम अलग होगा। अब इससे हमें फायदा क्या होगा? स्पीड बढ़ेगी, और दूसरा नो एक्सीडेंट। एक का पाथवे दूसरे के यहां पे मिक्स नहीं होगा। ट्रैफिक होगा लेकिन डायरेक्शनल ट्रैफिक होगा। आगे एक बात, ये बात आई थी कि आपकी सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर देयर आर मेनी पाथवेज साइमल्टेनियसली रनिंग। काफी सारी पाथवे होती है जो एक साथ काम करती है, पॉइंट टू बी नोटेड। बट इसके इंटरमीडिएटरी सब्सटेंसेस, यानी कि ये सब्सटेंस को हम बोलेंगे इंटरमीडिएटरी सब्सटेंस। एक पाथवे के इंटरमीडिएटरी सब्सटेंस दूसरे पाथवे के
इंटरमीडिएटरी सब्सटेंस से कभी एक्सीडेंट नहीं करेंगे, घुसेंगे नहीं एक दूसरे के पाथवे में। क्यों? बिकॉज हर एक पाथवे का, हर एक स्टेप का स्पेसिफिक एंजाइम है और वही ये एक्टिविटी को करवाता है, तो कोई कहां पे भी घुस सकता नहीं है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर ये भी है। राइट? अंडरस्टूड नाउ? सो ये दूसरा एक इंपॉर्टेंट फीचर यहां पे जो दिया गया है कि कैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर हर एक स्टेप का जो डिफरेंट एंजाइम होता है वो मेटाबॉलिक ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे स्पेसिफिक करता है। सो यहां पे ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे है एंड 10 डिफरेंट एंजाइम्स आर टेकिंग पार्ट इनटू दिस। 10 स्टेप है तो 10 डिफरेंट एंजाइम्स आर गेटिंग पार्ट इनटू दिस पाथवे। ऑल राइट, नेचर। नाउ आवर डिस्कशन इज नेचर ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी। जब कोई एक्टिविटी के अंदर एंजाइम पार्टिसिपेट करता है तो वो कैसे होती है एक्टिविटीज। राइट? सो पूरी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को हमने 4 स्टेप में डिवाइड कर दिया है। 4 स्टेप में डिवाइड कर दिया है। राइट? ओके। से फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो पॉइंट आपको बोला था कि कोई भी एक्टिविटी में जो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है उसको मैं बोलता हूं सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। सो दिस इज द पॉइंट विच इज अ स्टार्टिंग पॉइंट और दिस इज द प्रोडक्ट विच इज द एंड पॉइंट। एक यहां से स्टार्ट करके यहां पे आपको पूरी एक्टिविटीज को एंड करना है। अब इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन एंजाइम वुड बी इन बिटवीन। एंजाइम यहां पे आता है तो एंजाइम जुड़ेगा किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ। एंजाइम जॉइंट किसके साथ होना है? सबस्ट्रेट के साथ। ओके, एंजाइम इज 3D स्ट्रक्चर। Say for example, this is structure of an enzyme, 3D प्रोटीन है, वहां पे एक खांचा पड़ा है, खांचा, एक्टिव साइट ऐसा नाम बोला था हमने। राइट? देयर इज अ फरो, फरो मीन्स खांचा, जहां पे सबस्ट्रेट फिट होता है। से फॉर एग्जाम्पल ये सबस्ट्रेट है तो ये सबस्ट्रेट यहां पे ऐसे फिट होगा क्योंकि ये एग्जैक्टली उसका मैचिंग है फरो, तो ये यहां पे फिट होगा। तो ये फिट होने वाला मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट है और ये जो है बंच, ये एंजाइम है। तो सबसे पहले क्या होगा? एक होगा आपका एंजाइम और एक होगा आपका सबस्ट्रेट। राइट? एक आएगा एंजाइम और एक आएगा सबस्ट्रेट। वो दोनों अलग है बट वो जॉइंट होने हैं, दोनों जॉइंट हो गए। तो इसके बाद का स्टेप होगा वो होगा ES कॉम्प्लेक्स। तो ये जो है आपके सामने मैंने ये बनाया, इसको बोलूंगा मैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ES कॉम्प्लेक्स। ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है? एक एंजाइम है, एक सबस्ट्रेट है। जब वो दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होंगे, व्हेन सबस्ट्रेट इज अटैच्ड टू द एंजाइम, ये बोलूंगा मैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जैसे ही एंजाइम उसके साथ ज्वाइंट हुआ उसके बाद उसको कन्वर्ट होना है, उसको मतलब सबस्ट्रेट को कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट के अंदर। सबस्ट्रेट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, नॉट एन एंजाइम। अंडरस्टूड नाउ? तो वो काम कौन करवाएगा, फैसिलिटी कौन देगा? एंजाइम। तो अब ये क्या होगा? अब यही एंजाइम, से फॉर एग्जांपल ये एंजाइम है, सेम टू सेम मैं नहीं बना पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी। ये से फॉर एग्जांपल ये सेम एंजाइम है और ये जो सबस्ट्रेट था, ये सबस्ट्रेट
और ये उसका सेकेंड हाफ है, राइट। अब यहां पे इन दोनों के बीच में ऐसा वो ब्रेक डाउन करवा देगा, से फॉर एग्जांपल उसको ब्रेक डाउन करना है। तो ये पहले जॉइंट थे, दो स्ट्रक्चर दोनों एक दूसरे के साथ जॉइंट थे। अब एंजाइम ने क्या कर दिया, उसको तोड़ दिया। ये टूटा हुआ पार्ट है ना, अभी ये प्रोडक्ट है, ये दोनों प्रोडक्ट्स है और ये एंजाइम है। तो इसमें से जो बना वो प्रोडक्ट पी एन एंजाइम ई कॉम्प्लेक्स, पीई तो नहीं ईपी, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है वो। और उसके बाद ये सब अलग हो जाएगा, मींस एंजाइम अलग होगा, ये एक प्रोडक्ट, ये दूसरा प्रोडक्ट, ये दोनों प्रोडक्ट अलग हो जाएंगे और एंजाइम उसकी जगह पे चला जाएगा दूसरी रिएक्शन करने, ये सब अलग हो जाएंगे। सो इट इज ई प्लस पी, ये हो गए पी और ये हो गया ई। सो फर्स्ट स्टेप क्या था, हमारे पास एक था ऐसा प्रोडक्ट सॉरी सबस्ट्रेट, एक था हमारा ऐसा एंजाइम, ये दोनों अलग थे। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये ई प्लस एस, ये जॉइंट हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया ई प्लस एस कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स था इसको तोड़ा, मींस प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट जिसके साथ जॉइंट है एंजाइम ई एस ई पी कॉम्प्लेक्स, एंड बाकी सब एक दूसरे के साथ अलग हो गए, उसको ई प्लस पी बोलेंगे। इसका जो एंजाइम है वो वापस जाएगा और दूसरे सबस्ट्रेट के साथ जॉइंट हो जाएगा, प्रोडक्ट यूटिलाइज हो जाएंगी। सो दैट वे साइक्लिकली एंजाइम्स विल बी कीप ऑन रीयूटिलाइजिंग। अगर जरूरत नहीं है रीयूटिलाइज होने की तो वो डाइजेस्ट हो जाएंगे सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। हमारे पास मैकेनिज्म है उसको डाइजेस्ट करने का, लाइसोसोम, लाइसोसोम उसका डाइजेशन कर देगा अगर एंजाइम रिक्वायर्ड नहीं है तो। रेडी? सो फर्स्ट स्टेप ई प्लस एस, सेकेंड ई एस कॉम्प्लेक्स, थर्ड ई पी कॉम्प्लेक्स एंड फोर्थ ई प्लस पी। यही सेम टू सेम मैंने अलग तरीके से अलग डायग्राम से समझाया। ये है सबस्ट्रेट, यह एंजाइम, अलग अलग है, ई प्लस एस है, जॉइंट हो गया, ई एस कॉम्प्लेक्स हो गया। ये जो सबस्ट्रेट था इसको ब्रेक डाउन करके दो मॉलिक्यूल बना दिए, तो ये प्रोडक्ट हैं दोनों, जो जॉइंट किसके साथ है, एंजाइम के साथ, सो इट इज ई पी कॉम्प्लेक्स। सब अलग हो गए एक दूसरे के साथ, तो इट इज ई प्लस पी कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज हाउ योर सबस्ट्रेट is getting converted into the products। और ये किया है किसने, ये एंजाइम ने। सो एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट विदाउट यूजिंग इटसेल्फ। वो खुद यूज नहीं हो जाएगा केमिकल रिएक्शन के अंदर, वो एंजाइम खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो सिर्फ रेट को इंक्रीज करता है, खुद कभी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो, राइट? सो डू रिमेंबर दैट एज वेल। सो एंजाइम एक्ट विथ द सबस्ट्रेट लाइक लॉक एंड की मॉडल एक्शन। इसकी जो मोड ऑफ एक्शन है दैट हैज बीन एड्रेस्ड एज लॉक एंड की मैकेनिज्म। रीजन इसके पहले के जो स्लाइड थी उसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे है, उसका कोई भी स्टेप है, एनी स्टेप हैज अ स्पेसिफिक एंजाइम, लाइक एनी लॉक हैज स्पेसिफिक की, सेम वे सिंगल स्टेप हैज स्पेसिफिक एंजाइम। इसलिए वो मैकेनिज्म को हमने बोला है लॉक एंड की मैकेनिज्म, राइट? It includes the following step, 4 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप as I said ES complex, so substrate bind to the active site of an enzyme E plus S. This induces some changes into the enzyme so that the substrate is tightly bound with the active site of the enzyme to form enzyme substrate complex, ES complex बनेगा उसके बाद, right? So पहले ये इसके साथ joint होने के लिए आएगा E plus S, बाद में tightly bound होगा उसके साथ, that is ES complex। अभी जो भी चेंज हो रहा है, जो भी चेंज कर रहा है वो है एंजाइम।
एंजाइम चेंज करेगा, किसके ऊपर करेगा? सबस्ट्रेट के ऊपर. सो सबस्ट्रेट विल बी चेंजिंग, सबस्ट्रेट विल बी चेंजिंग इनटू द प्रोडक्ट. ये रहा. तो ये प्रोडक्ट हो गया जो ज्वाइंट है एंजाइम के साथ. सो एक्टिव साइट ब्रेक केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट टू फॉर्म एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, दैट इज ईपी कॉम्प्लेक्स बनेगा. राइट. सो थर्ड स्टेप इज ईपी कॉम्प्लेक्स and then the enzyme releases the product and free enzyme will be ready to bind to the another substrate later on. वो फिर से next cycle of reaction करने के लिए ready है enzyme. So this is how enzymatic reaction will be facilitated by a particular enzyme. Now comes the very important point of view कि कोई भी enzyme है, कोई भी enzyme जब सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, वो फिक्स है. लेकिन कौन सा ऐसा वो काम कर रहा है, एंजाइम इज डूइंग व्हाट काइंड ऑफ चेंज सो दैट these reaction will be fasten, these velocity will be increased, the rate of reaction will be increased. तो हम फाइंड आउट करने जा रहे रीजन कि एंजाइम क्या कर रहा है वहां पे जाके, केमिकल रिएक्शन के अंदर वो क्या चेंज करने वाला है. दैट्स व्हाट वी आर अबाउट टू लर्न नाउ. ओके, दिस इज द ग्राफ विच इज गिवन इनटू योर बुक. Right? This is the graph which is given into your book. Okay. There are two axes. जिसमें ये जो x है, x, वो एक्सिस के अंदर आपको रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है और डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन दिया गया है. एंड यहां पे आपको दिया गया है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. अंडरस्टूड? सो से फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे बात कर रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी की. सो बिफोर आई गेट इन टू दैट आई नीड टू डिफाइन व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी. राइट? सो देर आर थ्री बेसिक एनर्जीज: potential energy, second kinetic energy, and third mechanical energy. These are three basic forms of the energy, physics, right? Okay, can anybody of you tell me what is the potential energy? किसी को पता हो अगर potential energy क्या है? Potential energy. What is potential energy? हाँ, surely, why not? Which center? Ahmedabad. Okay, please carry on. Right. Okay. Let me define it first because बहुत ही कम है जिसको इसके बारे में पता है. So let me define it completely first. It is the energy stored in any substance by virtue of its position and mass. कोई भी सब्सटेंस कोई एक स्पेसिफिक जगह पे लोकेटेड होगा. से फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ये पेन है, से फॉर एग्जाम्पल उसका खुद का एक मास है, से फॉर एग्जाम्पल 20 ग्राम्स है, उसका वजन 20 ग्राम है. राइट? अब उसको मैं यहां से ऐसे नीचे ऐसे छोड़ दूंगा, सो इट विल बी फॉलन डाउन. राइट? अब वो फॉल डाउन होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर नीचे कुछ है, सही फॉर एग्जाम्पल मेरा पांव है और उसके ऊपर ये टिप गई तो मेरे पांव को उसका कोई ना कोई इफेक्ट होने वाला है.
अंडरस्टूड? अब मैंने यहां पे कोई ऐसे थ्रो तो नहीं किया है, आई डिड नॉट पुट एनी प्रेशर, रेडी? मैंने उसको कुछ नहीं, मैंने तो सिर्फ उसको छोड़ दिया है, जो होल्ड करके रखा था होल्डिंग मैंने छोड़ दी है। सो ये तो फ्री फॉल है, मैंने तो उसमें एनर्जी कोई दिया ही नहीं है। वो एनर्जी, हां उसके अंदर एनर्जी आई है ग्रेविटेशन की, एम आई वेरी करेक्ट? लेकिन वो एनर्जी तो कन्वर्ट हुई है ना, उसके अंदर कुछ तो होगा ना, तो उसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। जो मुझे लगी मेरे पांव के ऊपर, वो एनर्जी ये है, स्टोर्ड एनर्जी जो इसके अंदर ऑलरेडी है, सभी सब्सटेंस के ऊपर है, जिसके ऊपर दो चीजों का इफेक्ट है। एक, वो कितनी हाइट पे है, अगर ये बॉलपेन यहां से अगर गिरती है तो, और अगर 10 माला ऊपर से गिरती है तो उसकी इफेक्ट अलग हो जाएगी। तो एक असर होती है उसकी हाइट की, और दूसरी असर होती है उसका मास कितना है। अगर छोटा सा पत्थर सेकंड फ्लोर में से गिरेगा, ठीक आपको लगेगा, लेकिन वो बड़ा सा वो ईंट या पत्थर गिरेगा तो फिर सीधा केस ही होने वाला है ना, किसने गिराया है। सो वेलो, अगर मास बढ़ गया, राइट, ये मास है और ये पोजीशन दैट इज हाइट है। सो ये दो चीज की असर होती है। पोटेंशियल एनर्जी हर एक चीज जो मैटर है, जो मॉलिक्यूल है, उसके अंदर होगी होगी और होगी ही। सो अगर मैं कोई भी केमिकल सबस्ट्रेट की बात करूं तो उसके पास एक कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी तो होगी ही, राइट? सो सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है यहां पे। सो से फॉर एग्जांपल, मैं जहां से ये प्रोसेस स्टार्ट करूंगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये लास्ट में एंड पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट का जो इनिशियल स्टेज है, वो इनिशियल स्टेज में मेरे पास जो मॉलिक्यूल है उसको मैंने बोला है सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट के पास पोटेंशियल एनर्जी से फॉर एग्जांपल इतनी है, यहां पे इतनी एनर्जी है उसके पास, ये है सबस्ट्रेट। देखिए आपके ग्राफ में लिखा है सबस्ट्रेट, राइट? सो ये यहां से ये पॉइंट पे सबस्ट्रेट है जिसके पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी है, ये सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी है इतनी। अब ये पूरी प्रोसेस को स्टार्ट करेगा ऐसे, यहां से, दिस इज द पॉइंट कि जहां से वो केमिकल प्रोसेस में कन्वर्ट होना चालू करेगा। कन्वर्ट होके वो बन जाएगा एट द लास्ट, यहां पे आते, देखिए आपके ग्राफ के अकॉर्डिंग ही मैंने लिखा है, ये है नाउ प्रोडक्ट। तो एक्चुअल में सबस्ट्रेट में से प्रोडक्ट का कन्वर्जन इस पॉइंट से चालू हुआ है, यहां से चालू हुआ है, ये पॉइंट के ऊपर से। तो जब तक उसके पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी थी, उसके पास इतनी ही पोटेंशियल, इतनी ही एनर्जी है, उतनी एनर्जी के साथ वो कन्वर्जन चालू नहीं कर सकता है। उसका मीनिंग ये निकालना है आपको। तो ये कन्वर्ट करने के लिए उसको और भी एनर्जी चाहिए, और कितनी एनर्जी चाहिए? इतनी एनर्जी, इतनी थी, उसके बाद आपने इतनी एनर्जी को ऐड किया, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। यहां पे क्या इंक्रीज हो रहा है? एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो इतनी एनर्जी उसको मिली टोटल यहां पे, तब उसने कन्वर्ट होना चालू किया। तो ये जो स्टेट है, यहां का जो स्टेट है, कन्वर्जन जहां पे स्टार्ट हुआ, उसको मैंने बोला है ट्रांजिशनल स्टेट। ट्रांजिट होना मतलब एक में से दूसरे में कन्वर्ट होना चालू होना, इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। सो प्रोडक्ट बनना चालू हुआ किस में से? सबस्ट्रेट में से। सबस्ट्रेट में से ट्रांजिट होके प्रोडक्ट बनना चालू हुआ इस पॉइंट से। तो ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के लिए उसको इतनी एनर्जी मैंने एडिशन में दी है। आई हैव गिवन दिस एनर्जी एक्स्ट्रा। जब तक उसको वो एनर्जी नहीं मिलती है, तब तक वो
सबस्ट्रेट एंजाइम में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये एनर्जी को मैं बोलूंगा एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी है ये। अंडरस्टूड नाउ? क्योंकि वो एक्टिव करता है किसको? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो एक्टिवेशन एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ती है जब उसको कन्वर्ट करना है मुझे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर। जब तक वो नहीं देंगे तब तक ये प्रोसेस होने वाला है नहीं। रेडी? सो दैट्स व्हाट दे हैव गिवन हियर। ये जो पहला ऊपर का ये पार्ट है, ऊपर का ये लाइन है, उसको मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां पे आपको ये मार्क करना है, ये सबस्ट्रेट है, राइट। यहां पे जो एंड पॉइंट है यहां पे आपको ऐसे मार्क करना है, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। और ये ट्रांजिशन स्टेट जो है मैंने आपको समझाया वो। चलिए, ये समझ में आ गया है, थम्स अप होगा उसके लिए। ऑल राइट, गुड गुड। अब मैंने जो भी आपको यहां पे समझाया है, ये जो मैकेनिज्म मैंने आपको समझाई है, ये पूरी नॉन एंजाइमेटिक है। ये पूरी एक्शन जो है वो नॉन एंजाइमेटिक है। तो जब नॉन एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, यहां पे इतनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए या तो देनी पड़ती है। लेकिन अगर मैंने एंजाइम का यूज किया तो ये जो पिक है ना, ये पिक, ये जो इतनी ऊपर जा रही है, अगर एंजाइम मैंने ऐड किया तो एंजाइम उसको यहां से ही कन्वर्ट होना चालू करवा देगा। यहां पे वो कन्वर्जन स्टार्ट हो गया। सो इसका मतलब है कि मुझे एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ इतनी ही देनी पड़ेगी, इतनी ही एनर्जी मुझे ज्यादा देनी पड़ेगी, उससे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दो चीज में मेरा सेविंग हो रहा है, एक तो एनर्जी का सेविंग हो रहा है, दूसरा इतनी एनर्जी देने में जो टाइम जाएगा वो टाइम बचता है मेरा। सो टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी, डबल फायदा है। एंड दैट्स व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ योर एंजाइम। वही तो एंजाइम की इंपॉर्टेंस है। यहां पे अभी देखिए, ये सेकंड जो ग्राफ का सेकंड पॉइंट है, वहां पे ये जो शिफ्ट है ऐसे शिफ्ट हो गया। देखिए यहां पे ये था, अब ये टाइम बच गया, यहां से ही ट्रांजिशन होना चालू हो रहा है। सो आपका टाइम भी बच रहा है और आपका एनर्जी का लेवल भी कम। सो एक्टिवेशन एनर्जी विथ एन एंजाइम में आपको ये बेनिफिट हो रहा है। दैट्स व्हाट द बेनिफिट यू आर गेटिंग व्हेन एंजाइम इज गेटिंग इन्वॉल्व्ड इनटू द केमिकल रिएक्शन। सो ये ऑर्गेनिक रिएक्शन है नीचे वाला, और ये ऊपर वाला जो है वो इनऑर्गेनिक रिएक्शन है। सो दिस इज हाउ योर एंजाइम is involved and this is how it is increasing the rate of reaction। ये यहां पे इस ग्राफ के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया गया है। सो ये फेनोमिना को हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, जो यहां पे हम एडिशनल एनर्जी देते हैं वो। सो एक्टिवेशन एनर्जी is the additional energy which is required to start a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें जो एडिशनल सप्लाई करनी पड़ेगी एनर्जी, ज्यादा एनर्जी, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को यहां पे रिप्रेजेंट किया है, माइंड इट वेरी वेल। ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट दो पॉइंट ऑफ व्यू से है, जामनगर सेंटर दो पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है ना। एक तो आने वाला है नहीं, दिमाग में घुसने वाला है नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन वाला भी है, राइट। दूसरा, यहां पे इतने सारे कंजस्टिव वर्ड दे दिए गए हैं कि उसको हम कोरिलेट करना पड़ता है। ऑटोमेटिक कोरिलेट होगा नहीं, थ्रू द टेक्स्ट एंड डायग्राम इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो आपसे वो कोरिलेट होने वाले नहीं है। देखिए, इन एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, आपको दो टाइप के रिएक्शन यहां पे समझाए, नाम दे दिया गया है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, दो रिएक्शन। आपको पता ही है एंडोथर्मिक किसको बोलेंगे, राइट। जब आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है तो उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं, और जब रिएक्शन में से ही एनर्जी निकलती है तो उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। से फॉर एग्जांपल,
अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं तो फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की एनर्जी आप देते हो, सप्लाई करते हो एनर्जी को, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे हम उसको। क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। बट उससे उल्टा रेस्पिरेशन, जिसमें से एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फाइन, तो ये मैं कोरिलेट करके समझा रहा हूं दोनों का एक एक एग्जाम्पल। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, कोई भी सबस्ट्रेट को आपको एक्टिवेशन एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी। वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो भी देनी पड़ेगी, और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो भी उसको एक्टिवेशन एनर्जी तो आपको देनी ही है। रेडी? ओके। In an exothermic or endothermic reaction, the substrate must go through much higher energy state. ये एनर्जी स्टेट उसका इतना ही था, यहीं पे था, बट एनर्जी वो उसको रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए मच मोर हायर उसको जाना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी लेवल पे उसको जाना पड़ेगा। राइट? ओके। सो ये जो मच मोर हायर स्टेट है, ये उसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी। क्या बोलेंगे? ट्रांजिशनल स्टेट एनर्जी। Therefore, activation energy is difference between average energy of substrate and transition state energy. तो अब ये आ गया एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ओके, हमने एक बोला था पोटेंशियल एनर्जी, ये है, ये सबस्ट्रेट की खुद की एनर्जी है जो यहां पे दिखाई गई है पोटेंशियल एनर्जी में। ये ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है, ये है। तो यहां से लेके यहां तक की जो एनर्जी का लेवल है, ये जो हमने एडिशन डाला है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। सो देयरफॉर एक्टिवेशन एनर्जी इज डिफरेंस बिटवीन क्या है? एक एवरेज एनर्जी, ये एवरेज एनर्जी है, एंड द ट्रांजिशनल स्टेट एनर्जी, ये ट्रांजिशनल स्टेट, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इतना, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी का जो डेफिनेशन है यहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो देर आर 3 काइंड ऑफ एनर्जी विच इज एक्सप्लेन हियर। एक एक्टिवेशन एनर्जी, एक एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक की ट्रांजिशनल स्टेट एनर्जी, और वो एक्टिवेशन एनर्जी है क्या, किसके बीच का डिफरेंस है वो। सो 3 फेनोमेना इज गिवन हियर। ओके, अब मैं बात करता हूं ये एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक का डिफरेंस। राइट? सो यहां पे जो रिएक्शन आपको दिखाया गया है, लेट अस डिफाइन और लेट अस कंपेयर कि एक जो सबस्ट्रेट था वो यहां पे था, ये सबस्ट्रेट की एनर्जी है। राइट? जब वो प्रोडक्ट बनके तैयार हो गई तो उसकी एनर्जी का लेवल यहां पे चला गया। ये एनर्जी है इतनी, पहले इतनी थी, अब रिड्यूस होके इतनी। तो एनर्जी यहां पे एट द एंड ऑफ द रिएक्शन रिड्यूस हुई है। पहले उसके पास मच मोर हायर एनर्जी थी, लेकिन सबस्ट्रेट में से प्रोडक्ट बनने के बाद उसने एनर्जी को रिलीज किया है, लॉस किया है, कम हुई है उसकी एनर्जी। तो जब प्रोडक्ट बना तब एनर्जी डिक्रीज हुई, तो डेफिनेटली डिक्रीज हुई, उसका मतलब उसने लॉस्ट की है एनर्जी को, एनर्जी उसने बाहर निकाली है। बाहर निकालने का मतलब है एक्सोथर्मिक। राइट? सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपके सामने जो ग्राफ रखा है वो डिपिक्टेड है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अगर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता तो ग्राफ कैसा होता? सही फॉर एग्जांपल यही सबस्ट्रेट है, यही ऐसे ही ट्रांजिशन स्टेट है, और ये जो है प्रोडक्ट यहां पे बनता है ऐसे कहीं पे, ये प्रोडक्ट है। सही फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्ट, ये जो एवरेज लाइन है ना एनर्जी की, एवरेज लाइन, उसके ऊपर अगर बनता तो वो एंडोथर्मिक होता, लेकिन ये एवरेज लाइन के नीचे है, एनर्जी कम हुई है, इसलिए उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसने खुद की एनर्जी को लॉस किया है। रेडी?
ओके, सो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन विथ एन एग्जांपल ऑफ दिस चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए. यू मस्ट नो व्हाट इज डिफरेंस between endothermic reaction and exothermic reaction if the graph will be presented to you. ये ग्राफ एक है, दूसरा ग्राफ अगर आपको एग्जाम में दिया गया, से फॉर एग्जांपल नीट के पेपर में, तो आपको वो पता होना चाहिए. व्हाट आई मीन, अंडरस्टूड, राइट? सो प्लीज केयरफुली स्टडी दीज एग्जाम्पल्स, राइट? ओके, अब ये जो चार्ट है इसके बारे में यहां पे लिखा है, इफ द प्रोडक्ट इज एट द लोअर एनर्जी लेवल. देखिए ये प्रोडक्ट है और ये सबस्ट्रेट है, तो ये सबस्ट्रेट से लोअर एनर्जी है, लोअर एनर्जी लेवल देन द सबस्ट्रेट, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इट रिक्वायर्स नो एनर्जी टू फॉर्म द प्रोडक्ट, राइट? तो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसको नो एनर्जी, it requires no energy to convert into the product. But हम बात करेंगे बायोकेमिकल रिएक्शन की, बिकॉज हमें कंसर्न है मेटाबॉलिज्म से, हमें मेटाबॉलिज्म से जो है वो कंसर्न है. एंजाइम लोवर्स मींस ये जो ट्रांजिशन स्टेट के लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए उसको वो कम कर देगा. ये एंजाइम है, इसलिए ये एक्टिवेशन एनर्जी को उसने लो कर दिया है, राइट? सो बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर एंजाइम इन्वॉल्व होता है जो लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, एंड एज अ रिजल्ट द स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन इज ग्रेटली इंक्रीज्ड. सो यहां पे आपको ये राज समझाया कि हाउ एंजाइम इज रिड्यूसिंग, राइट, द एफर्ट and how it is getting speed into the reaction. स्पीड को कैसे बढ़ाता है, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाता है, वो यहां पे with these graph and example they have explained. Fine. अब छोटे से 2 पॉइंट्स बाकी रह गए हैं चैप्टर के अंदर. एक, एंजाइम के ऊपर कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो असर करते हैं, द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द एंजाइमेटिक रिएक्शन. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज के एंजाइम जो है उसका नाम जो है हम कैसे रखेंगे, राइट? सो ये 2-3 पॉइंट लास्ट के बाकी रह गए हैं. एंड लेट अस गो विथ द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द एंजाइमेटिक रिएक्शन, राइट? मैंने जब केमिकल एक्टिविटी के बारे में समझाया था, सो देर आर मेनी फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग the chemical reactions rate, ऐसा आपको समझाया गया है, आगे भी समझाया गया था. So there are many things, there are many factors which are affecting the rate of chemical reactions. So some are main factors, some are main factors. So यहाँ पे जो आपको as an example दिया गया है वो ऐसे main factors को highlight किया गया है जो मेनली इन्वॉल्व है एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए. से फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन इज टेम्परेचर एंड पीएच ऑफ योर बॉडी सिस्टम, योर सेल. ये फर्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा एंजाइमेटिक एक्टिविटी को. नंबर 2, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, राइट? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ये भी इफेक्ट करता है केमिकल एक्टिविटीज को. एंड नंबर 3 इज प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर. 1 by 1 हम सभी को एक के बाद एक देखने वाले हैं. तो जब इनहिबिटर का टर्न आएगा थर्ड पॉइंट का, देन एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज दिस इनहिबिटर. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर and pH. All right. Enzyme are proteins. I repeat, enzymes are protein structurally. So जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स प्रोटीन के हैं वो सभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर
और सभी जो हाइलाइटिंग पॉइंट है दे आर एप्लीकेबल टू दी एंजाइम्स. सो प्रोटीन या तो एंजाइम, टेम्परेचर इज फर्स्ट पॉइंट विच इज गोइंग टू अफेक्ट. आगे भी था और अभी भी रिपीट हुआ है, राइट, कि टेम्परेचर इज द फर्स्ट अफेक्टिंग फैक्टर टू द प्रोटीन और टू द एंजाइम. तो ये केमिकल रिएक्शन को अगर आपको कांस्टेंट वे में अगर स्पीड बढ़ानी है तो नॉर्मल टेम्परेचर से आपको टेम्परेचर ज्यादा करना पड़ेगा, राइट. सो अगर आपको नॉर्मल स्पीड में ही रहना है तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा नहीं होने वाला है. रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए आपको टेम्परेचर को इंक्रीज करना है. सो आपकी बॉडी का टेम्परेचर इसीलिए हाई रहता है. योर बॉडी इज विथ कांस्टेंट एंड कंसिस्टेंट टेम्परेचर एट 37 डिग्री सेल्सियस. वाई? बिकॉज 25 डिग्री से अगर 10 डिग्री 12 डिग्री अगर ऊपर हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा. अभी हमने पढ़ा था. इसलिए आपकी बॉडी के अंदर आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको हाई रखते हैं हम, हमारी सिस्टम उसको हाई रखती है. अंडरस्टूड? वो बॉडी के टेम्परेचर को हाई रखने के लिए हमारी बॉडी करती क्या है? व्हाट आवर सेल्स आर डूइंग टू इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, राइट? किसी को पता है? ऑल राइट, लेट मी टेल यू. ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, राइट? क्या करती है बॉडी? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज के अंदर काफी सारी एनर्जी स्टोर्ड होती है. आई रिपीट, ग्लूकोज के अंदर काफी सारी एनर्जी स्टोर्ड होती है. अब वो स्टोर्ड एनर्जी जो होती है वो जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तब रिलीज होती है और उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है एटीपी के अंदर. तो एक बाजू एनर्जी रिलीज हो रही है और दूसरी बाजू एटीपी में कन्वर्ट हो रही है. उसकी जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी 100% नहीं होती है, राइट? जितनी एनर्जी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में से निकलती है सारी की सारी एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट नहीं हो सकती है. आप से फॉर एग्जांपल 10 लाइन पढ़ोगे तो 10 लाइन में से हर एक वर्ड आप याद नहीं रख सकते हो. एक आध वर्ड, 2 वर्ड या एक लाइन आप भूल सकते हो. 100% एफिशिएंसी नहीं है किसी की भी. सो सेम वे यहां पे कन्वर्जन जो हो रहा है ग्लूकोज की स्टोर्ड एनर्जी का एटीपी के अंदर जो भी कन्वर्जन हो रहा है वो कन्वर्जन 100% एफिशिएंटली नहीं होता है. काफी सारी एनर्जी ऐसे ही रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. आई रिपीट, काफी सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. हीट एनर्जी दैट इज गर्मी. सो आपकी बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता रहता है और इसीलिए आपकी बॉडी का अंदर का टेम्परेचर जो है एक लेवल के अंदर मेंटेन रहता है. अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर और आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम नहीं है, राइट? से फॉर एग्जांपल बाहर गर्मी है, 37 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तड़के में आप जा रहे हो से फॉर एग्जांपल, तो आपकी बॉडी में से, राइट, आपकी बॉडी में से पसीना क्यों निकलेगा? क्योंकि बाहर की गर्मी आपके शरीर के अंदर घुस के 37 से ज्यादा नहीं कर दे आपकी टेम्परेचर को, बिकॉज आपको 37 ही रखना है. हीट का ये एक पैरामीटर के हीट ऑलवेज इज गेटिंग रिलीज्ड फ्रॉम हायर टू द लोअर कंसंट्रेशन. हीट वहां पे जाती है तो 45 में से बाहर की हीट आपके बॉडी के अंदर घुस सकती है, बट आपकी बॉडी नहीं चाहेगी. तो आपकी बॉडी क्या करेगी? अंदर से पानी को रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, प्रेसिपिटेशन, राइट? सो आपका जो स्किन है उसके अंदर से वो वेपर निकलेगा, वो इवेपोरेट होगा व्हेन द सनलाइट इज फॉल ऑन टू दैट. सो आपका पर्स्पिरेशन जो होगा वो आपको बचाता है. सेम वे अगर बाहर ठंडी है
तो आपकी बॉडी की हीट बाहर निकल जाएगी। बॉडी को ये भी नहीं परवड़ता है, राइट। बॉडी ये भी नहीं चाहेगी आपके अंदर की हीट निकल के बाहर चली जाए, क्योंकि आपको 37 मेंटेन रखना है। योर बॉडी वांट्स टू मेंटेन 37 डिग्री सेल्सियस एट एनी कॉस्ट। हीट की लॉस को वो नहीं रोक सकता है, तो क्या करेगा, जितनी हीट लॉस्ट होती है उससे ज्यादा हीट अंदर बनाएगा, राइट। तो जब आप ठंडे एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे तो आपकी हीट का लॉस होने का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसी हिसाब से आपको अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना होगा। तो वो करने के लिए आपकी बॉडी को एक्टिव होना पड़ेगा। तो एक्टिव कौन होगा, आपके मसल्स। आपके मसल्स की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, राइट। दैट इज योर शिवरिंग। आपका बॉडी पूरा शिवर होने लगेगा, आपको ठंडी जो लगती है उस ये फिनोमिना वही है। ठंड लगने का रीजन ये है कि जब ठंड लगेगी आपका बॉडी पूरा सिविर होगा। जब सिवरिंग होगा, आपकी सिवरिंग होती कहां से, आपके मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब मसल्स को एनर्जी मिलेगी। मसल्स को एनर्जी कब मिलेगी, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा लार्ज क्वांटिटी में। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, वो आपकी बॉडी को गर्म करेगी। ये आपकी बॉडी को गर्म करने का मैकेनिज्म है उसका खुद का। सो आपकी बॉडी, कोई भी आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है या कम है, उससे आपकी बॉडी के अंदर की टेम्परेचर की रेंज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको हम बोलेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री है आपकी बॉडी का। तो से फॉर एग्जांपल ये जो है यहां का पॉइंट, ये 37 डिग्री सेल्सियस है ऑप्टिमम। अगर उससे कम टेम्परेचर है तो, अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर है तो, कोई भी टेम्परेचर जो है उससे ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन गिर जाएगा, अगर आप उससे कम टेम्परेचर कर दोगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन गिर जाएगा। दोनों केस में रेट ऑफ रिएक्शन कम होने वाला है। दैट्स व्हाई यू रिक्वायर्ड 37 डिग्री सेल्सियस कंसिस्टेंट। सो एंजाइम शोज हाईएस्ट एक्टिविटी एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। जैसे यहां पे टेम्परेचर है वैसे यहां पे पीएच है। ये पीएच है ऑप्टिमम पीएच जो है 7। अगर मैं पीएच को 7 से कम करूंगा या 7 से ज्यादा करूंगा तो दोनों केस में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन गिरने वाले हैं। सो ये टेम्परेचर 37 है यहां पे, अगर 37 से मैं डाउन करूंगा तो भी रेट ऑफ रिएक्शन गिरेगा, टेम्परेचर को 37 से ज्यादा करूंगा तो भी रेट ऑफ रिएक्शन गिरेगा। सो ये दोनों ग्राफ ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न के हैं। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच से अगर पीएच या टेम्परेचर को मैंने कम किया, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। टेम्परेचर या पीएच से ऑप्टिमम से मैंने ज्यादा किया तो भी रेट ऑफ रिएक्शन गिरने वाला है, कम होने वाला है। डू रिमेंबर दीज एट एनी कॉस्ट। ओके, सो एक्टिविटी डिक्लाइंस बिलो एंड अबो ऑप्टिमम वैल्यू। ये ऑप्टिमम वैल्यू से अगर आप कम करोगे या तो ज्यादा करोगे, दोनों ही केस में आपकी रेट ऑफ रिएक्शन तो ड्रॉप डाउन ही होने वाली है। एट लो टेम्परेचर एंजाइम टेम्पररीली बिकम्स इनएक्टिव। ये इंपॉर्टेंट है। अगर टेम्परेचर लो, यस यस, दैट इज गुड क्वेश्चन। कि जब आप माउंटेन एरिया में जा रहे हो, ऊपर आप क्लाइंबिंग के टाइम तो फिर भी ठीक है, लेकिन स्पेशली जब आप स्लोप से उतरने वाले हो उस टाइम पे आपके पैर जो है दैट विल स्टार्ट शिवरिंग। अब पॉइंट ये है कि जब आप क्लाइंब कर रहे हो, चढ़ रहे हो, पॉइंट टू बी नोटेड, आप केयरफुली उसको नोट करना। Actually, that is very laborious activity which is getting done by your muscles. आपके लेग के मसल जब चढ़ने वाले होते हैं एकदम लेबरियस एक्टिविटी कर रहे हैं, आपके लेवल से ज्यादा उसने लेबर का काम कर लिया है। रेडी? इन दैट केस जब आप ऊपर चढ़ रहे हो तब वो जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी करेंगे तो आपके मसल्स जो है उसके अंदर लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होने वाला है, ग्लूकोज का इनकम्प्लीट कंबस्चन होगा। आई रिपीट, ग्लूकोज का इनकम्प्लीट कंबस्चन होने वाला है। सो लैक्टिक एसिड जो है वो उसमें बनेगा।
अब लैक्टिक एसिड जब बनेगा वो डिपॉजिट होगा आपके लेग्स के अंदर, लेग्स के मसल्स के अंदर, राइट। और यूजुअली जो होता है, हाँ हेलो, अच्छा वॉइस आ रही है ना, ओके ओके, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। जब आप नीचे उतरोगे उस टाइम पे ऑलरेडी आपके लेग्स के अंदर वो डिपॉजिटेड फॉर्मेट में लैक्टिक एसिड है, एंड अगेन आपको वही एक्टिविटी, लेबरियस एक्टिविटी करनी है, तो वो उस मैकेनिज्म को कंपेंसेट नहीं कर पाते हैं। दैट इज वाई वो शिवरिंग का काम होता है, वो ठंडी के लिए नहीं होता है, वो अलग फेनोमिना है, अंडरस्टूड। वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के फिनोमिना के वजह से ऐसी एक्टिविटीज होती है। ऑल राइट बेटा, फाइन, 4 बज चुके हैं, सो वी विल डिस्कस these components now later on into the next lectures, right? So I'll see you into the next lecture. Have a good time.